पिंग भी कर रहे हैं ना साथ में लोग। So, good morning, students. Good. So, NSS, National Services Scheme, welcomes newly admitted students of our college BTech first year. This is the induction program 2020, and I am Nitin Kumar Gupta, Program Officer of NSS THDC IHET and HOD Electrical Engineering THDC IHET. So today we will discuss about NSS. So first of all, we will discuss about the introduction of the NSS. So now I am giving the brief introduction of NSS. So the first point is the National Service Scheme is an Indian government sponsored public service program conducted by the Department of Youth Affairs, and Sports of the Government of India, popularly known as NSS. In short form, we will say about it. NSS. The scheme was launched in Gandhiji's centenary year 1969. As I have told earlier that 1869 is the birth year of Gandhiji, and 1969 is the centenary year of Gandhiji. So from 24 September 1969, it is initialized in India, aimed at developing students' personality through community service. Here we are saying as the community service. NSS is a voluntary association of young people, youth, youth age of our generation, young people in colleges, universities, and at plus two level also, working for campus community linkage. So NSS, we can say about it, NSS is what? It is a campus community linkage. And the third point is the cardinal principle of the NSS program is that it is organized by the students. It is organized by the students themselves. In this program, the students are called NSS volunteer, and both students and teachers, through their combined participation in a community service, get a sense of involvement in tasks of national building. So, okay, this is the brief introduction of NSS. It is clear? Yes, sir. बहुत धीमी सी आवाज आ रही है। Sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear हो गया sir. एक यूथ प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, और इतनी धीमी सी आवाज बोलोगे, ये तो यंग पीपल के लिए तो है ही है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। पिंग भी बहुत हो रहे हैं ना। ठीक है। So now the next slide is based on the aims and objective of a national service scheme. The objective of the national service scheme is development of the personality of students through community service. Are you getting it?
Yes, sir. Yes, The sir. objective of NSS is what? Development of the personality of students through community service. This is the basically based on the personality development, basis on the community service. This objective is second point. This objective is sought to be achieved by enabling the students to work in community. And the third one is the program aims to inculcate social welfare in students and to provide service to society without bias. So this is basically based on the social service. It is also called as a social service. And next one is NSS volunteer. Those students registered in the NSS, they called NSS volunteers. So NSS volunteers were to ensure that everyone who is needy gets help to enhance their standard of living and lead a life of dignity. So the NSS volunteer works for the social services and provide the help to the needy people of the community. And the next one is the objective of a national service scheme. Objective of the NSS, first point is to enable the students to understand the community in which they work. Second one, to understand themselves in relation to their community. मतलब अपने आप को पहचानना है, अपने आप और कम्युनिटी के लिए किस तरह, मतलब अपने आप को पहचानना है, कम्युनिटी को समझना है। जहाँ हम जैसे अभी कॉलेज में पढ़ने के लिए आप लोग कॉलेज में आ रहे हो, 4 साल के लिए आप कॉलेज में एडमिट हो रहे हो, तो आप बीटेक करके यहाँ से जाओगे, तो यहाँ आसपास के लोगों को जानना, तो ये एक एनएसएस के थ्रू भी हम आसपास के लोगों को जान जाते हैं। वो किस तरह से जान जाते हैं, हम क्या करते हैं इसमें एनएसएस में, हमने कुछ गांव वो लिए हुए हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उन गांव के थ्रू, मतलब जो अडॉप्टेड गांव हैं हमारे आसपास के, कॉलेज के आसपास के रहते हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना रहता है। उनके पास हम किसी काम के थ्रू जाते हैं, उनके हेल्प के लिए जाते हैं। कभी अभी हमने रिसेंटली, अभी मैं दिखाऊंगा कुछ फोटो जो हमने अभी रिसेंटली एक्टिविटी जो की हैं, उनको हमने कपड़े के थैले, क्लॉथ बैग्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, हमने उनको उनके गांव में जाके हमने साफ सफाई भी की है, और कॉलेज में भी हमने साफ सफाई की है। तो वही है कि हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह रहने के साथ साथ, वहाँ काम करने के साथ साथ, काम का मतलब क्या है कि हम यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ के आसपास के लोगों से इंटरेक्ट भी हों। तो ये एनएसएस का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करें, उनकी हेल्प करें, जो भी नीडी लोग होंगे जिनको चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो अडोप्टेड विलेजेस रहते हैं हमारे पास, वहाँ हम विजिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज टू to identify the needs and problems of the community and involve them in problem solving process. Next one, to develop among themselves a sense of social and civic responsibility. Next, to utilize their knowledge in finding practical solution to individual and community problems. Next one is to develop competence required for group living and sharing of responsibility, to gain skills in mobilizing community participation. Next one is
to acquire leadership qualities and democratic attitude. Next one, to develop capacity to meet emergencies and national disaster. कभी कभी हमारे आसपास नेशनल डिसास्टर्स आ जाते हैं या कोई इस तरह की कोई इमरजेंसीज आ जाती हैं, तो उसमें हम लोग हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स आगे बढ़ कर के काम करते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं जो आसपास के अपनी कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो जरूरी नहीं है, अभी इस टाइम पे जो कोविड रहा उस टाइम पे बच्चे सारे लॉकडाउन थे, अपने घर में ही थे, तो उन्होंने अपने घर के आसपास के लोगों की हेल्प की। जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में ही हो रह करके हेल्प करेंगे, उन्होंने घर से रह करके हेल्प करी उनकी। और उसमें इस तरह से रहता है, अब उनको कैसे हम बताएंगे कि हमने ये काम किया, जो ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये एनएसएस। तो यूथ अफेयर प्रोग्राम को, मतलब यूथ अफेयर डिपार्टमेंट को हमने उनके पास अपनी फोटो, जो भी बच्चे काम करते थे उसकी एक फोटो क्लिक कर लेते थे और वो उस फोटो की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बना करके हम उन्हें भेजते थे, जिससे उनको भी ये पता रहे कि हमने क्या क्या किया है अपनी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, आर यू गेटिंग? Yes, So sir. these are the objectives. So now introduction is clear, aim and objective of NSS is clear. Yes, sir. Yes, Next sir. one, this, ये देखिए, ये एनएसएस का लोगो है, ये देखा है कभी आप लोगों ने? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो देखा अब है। इसमें Yes, sir. इसमें जो ये एक चक्र की तरह दिख रहा है, ये आपको ये बता सकते हैं आप ये कहाँ से लिया है? अशोक चक्र में से कॉपी किया हुआ। कॉपी नहीं किया है अशोक चक्र, अशोक चक्र नहीं है। अशोक चक्र में जो बीच में जो बार्स बार्स कहेंगे, ये जो तीलीज सर होती हैं एबीवीपी। उसमें, नहीं एबीवीपी तो बहुत बाद की चीज है, ये 1969 के टाइम का है। ये जब मतलब देश आजाद होने के बाद भी इस तरह का लगा कि अभी भी यूथ एक राह पर नहीं चल रहा है, उस टाइम की बात है ये, उस टाइम का ये लोगो है। उस टाइम पर ये एनएसएस को डेवलप किया गया था। तो एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, हिंदी में क्या किस तरह से बोलेंगे इसे? राष्ट्रीय सेवा योजना। और जो बीच में आप ये बताइए, देखिए ये तीली देख रहे हैं आप, तीली का है या बार्स का है? ये 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 कितने बार्स हैं, काउंट करके बताओ। 8। 8। और अशोक चक्र के, हाँ अशोक चक्र में कितने होते हैं बार? 26। 24, 24। 24। हाँ, वो इसलिए अब ये तो क्लियर हो गया कि ये अशोक चक्र से नहीं है, अशोक चक्र का पार्ट नहीं है। Sir, wheel. हाँ व्हील है, बिल्कुल सही है। सर कोणार्क सन टेम्पल जो कि सर ओडिशा में सिचुएटेड है, आई थिंक उसका जो उस पे है ये। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल टेम्पल का जो सही। उड़ीसा, उड़ीसा में है ये कोणार्क, कोणार्क सूर्य टेम्पल। उसका एक बहुत बड़ा रथ है, उस रथ के पहिए को ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिप्रेजेंट नहीं करता, वहां से ये लिया गया है। और उस पहिए के ये जो इस तरह से 8 बार है, ये हमारे 8 पहर होते हैं ना दिन में, 24 आवर में। तो ये मतलब हर एक बार 3 आवर के इक्विवेलेंट है, तो एक बार हो गया तो 8 इंटू 3 24 आवर के लिए ये हो गया, तो ये उसको शो करता है। इसमें कलर कौन कौन से हमने यूज किए हैं? रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू। तो अब रेड एंड ब्लू, इनका भी एक सिग्निफिकेंस है। रेड कलर ये शो करता है कि एक्टिवेंस, मतलब यूथ का एक्टिव दिखाता है। और ब्लू, चलो आगे इसको दिखाते हैं। ये तो एनएसएस का लोगो हो गया, ये शो हो रहा है आपको, ठीक यस है। सर। इसमें 2 कलर हो गए, एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है, और 8 बार हो गए, 8 इसमें तीलियां हो गई, ठीक है। अब देखो एनएसएस का ये जो सिंबल है, ये लोगो है, ये
तो ये क्या शो कर रहा है? पहला पॉइंट है इसमें, बेस्ड ऑन रथ व्हील, रथ का व्हील ऑफ कोणार्क सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है। पोर्ट्रेज द साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल मतलब व्हील है, तो व्हील का मतलब क्या, एक तरह से साइकिल मतलब रिपीट करना अपने आप को, तो वो साइकिल हो गई। प्रिजर्वेशन एंड रिलीज सिग्निफाइंग मूवमेंट ऑफ लाइफ अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ठीक है, preservation and release signifying movement of life across time and space। टाइम मतलब एक टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंगली, जो जैसे जैसे टाइम और स्पेस मूव करता है ना, तो एक ये उस तरह का शो कर रहा है। प्रिजर्वेशन एंड रिलीज सिग्निफाइंग मूवमेंट, प्रिजर्वेशन मतलब एक दृढ़ता लगन के साथ, ये एक उस क्रिएशन ऑफ साइकिल मतलब एक क्रिएटिविटी, एक क्रिएशन, एक उत्पत्ति का साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? ये जो इसका व्हील है। Yes, sir. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट सिग्निफाइज द प्रोग्रेसिव साइकिल ऑफ लाइफ। एक जीवन के चक्र को भी बताता है, प्रोग्रेसिव साइकिल ऑफ लाइफ। स्टैंड फॉर कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज। कंटिन्यूटी है मतलब व्हील है, व्हील क्या शो करेगा, हमेशा एक कंटिन्यूअस जैसे चलना है हमें, तो वो कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज, चेंज के साथ साथ, ये नहीं है कि एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो जाए। एक कंटिन्यूटी, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहेंगे सर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, द व्हील हैज 8 bars which represent 8 पहर, that is 24 hours a day। जो भी मैंने आपको बताया था कि इसमें 8 बार है, तो 8 बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 24 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब रेड कलर इंडिकेट्स वॉट? Red color indicates NSS volunteer are active, energetic, and full of spirit. And the next, blue color indicates the cosmos of which NSS is a teeny part, ready to contribute its share for the welfare of the society। ब्लू कलर हमको ये शो कर रहा है कि एनएसएस वॉलंटियर हमेशा एक रेडी हैं, रेडी टू कंट्रीब्यूट इट्स शेयर, अपना एक शेयर देने के लिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो सोसाइटी को वेलफेयर, सोसाइटी की डेवलप करने के लिए, और एनएसएस के वॉलंटियर हमेशा अपने आप को रेडी रहते हैं। और रेड कलर शो करता है कि एनएसएस वॉलंटियर्स आर एक्टिव, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ स्पिरिट। इसका माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है। और इसका एक स्लोगन बोलें या मोटो बोलें, जो एनएसएस का स्लोगन, नॉट मी बट यू। कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना है, हमेशा अपने सोसाइटी के लिए सोचना है। तो इसीलिए इसका स्लोगन इस तरह से दिया गया है, नॉट मी बट यू, मैं ही नहीं, सभी लोगों के लिए। तो दिस इज द स्लोगन। So this is the slogan or motto, we can say as not me but you। ठीक है, are you getting the meaning of not Yes, sir. me but you? मतलब Sir. सेल्फिश नहीं रहना है। हाँ, सेल्फिश नहीं रहना है, इसमें हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए ही सोचना है। तो इसलिए इस तरह का स्लोगन दिया गया है, नॉट मी बट यू। हिंदी में से बोलते हैं, मैं नहीं किंतु आप, मैं नहीं परंतु आप, इस तरह का लिखा मिलेगा। तो मैं अपने लिए ही नहीं कोई काम करना है, मतलब जबकि मुझे आपके लिए भी काम करना है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से नॉट मी बट यू। तो कंसिडरेशन, अब देखो इसका मीनिंग समझ लो। यहाँ पर क्या है? कंसिडरेशन फॉर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, जो मैं बता रहा हूँ, अपने साथ के आसपास के लोगों के बारे में ही उनको कंसिडर करते हुए रहना है। Reflects the essence of democratic living।
नेक्स्ट वन, अपहोल्ड्स द नीड फॉर सेल्फलेस सर्विस देनी है हमें अपनी सोसाइटी के लिए, एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर्स पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर्स पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा अपने साथ के लोगों के आसपास की कम्युनिटी के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिसिएट करना है। हमेशा ये नहीं है कि हमें अपने बारे में ही सोचना है, अपने को ही अप्रिसिएट करना है। Underlines that the welfare of an individual ultimately depends on the welfare of the society. This is basically shows, not me but you, what shows? It shows the welfare of the society. बैज, इसमें एक बैज दिया जाता है बच्चों को, अभी हमें मिले नहीं है, लास्ट ईयर ही हमारे कॉलेज में एनएसएस आया था, और फिर हम सितंबर के मंथ से ही एक्टिव हुए थे। सितंबर में हमने पहले 50th एनिवर्सरी बनाई थी एनएसएस की, और वो 50th एनिवर्सरी भी थी लास्ट ईयर, और 150th बर्थ था, बर्थ उनका गांधी जी का, तो लास्ट ईयर से ही हमने बनाना शुरू किया, लास्ट ईयर से ही हम एक्टिव हुए हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें अभी हमें बैज मिले नहीं है बच्चों के लिए, तो इसमें बैज मिलते हैं जो एनएसएस के वॉलंटियर होते हैं, तो जो काम करते टाइम में वो लोग अपने साथ इसको यूज करते हैं, इनको लगाते हैं। तो उसमें बैज में क्या क्या रहता है, बैज ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस सिंबल इज इम्बोज्ड ऑन द एनएसएस बैज। तो जो एनएसएस का सिंबल हमने अभी देखा था, एनएसएस का लोगो वही बैज पे बना होता है। ठीक है, वही चक्र, ध्यान आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, एनएसएस वॉलंटियर वियर इट व्हाइल अंडरटेकिंग एनी प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी सर्विस। थर्ड पॉइंट, द कोनार्क व्हील in the symbol has 8 bar which represent the 24 hours of the day. The red color in the badge indicates that the NSS volunteers are full of blood, that is lively, active, energetic and full of high spirit. The next one is navy blue. Navy blue color indicates the cosmos of which the NSS is a teeny part. NSS is a teeny part ready to contribute its share for the welfare of mankind. So this is the representation of the badge. किस तरह का बैज शो होता है, तो पहले बैज में एक तरह से यहाँ हम पॉकेट की तरफ लगाते हैं शर्ट पे, और बैज में वही एनएसएस का लोगो, एनएसएस का सिंबल रहता है। ठीक, एनएसएस डे, यस। सो एनएसएस डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 24th of September। NSS was formally launched on, ये इस दिन लॉन्च हुई थी इंडिया में 24 सितंबर 1969, the birth centenary year of the father of the nation. Who is the father of the nation? महात्मा गांधी। गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के सेंटेनरी ईयर, मतलब उनकी शताब्दी ईयर कहेंगे, शताब्दी वर्ष, उनकी बर्थडे 100 साल हो चुके थे तब ये उस दिन पर लॉन्च की गई थी 1969 में, तो उस दिन को एनएसएस डे कहते हैं। So therefore 24 September is celebrated every year as NSS Day with appropriate program and activities. प्रोग्राम रहते हैं, एक्टिविटीज कराई जाती हैं इसमें। तो these are the some personality traits and skills. अब इसमें अब देखो, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम एनएसएस में क्या करते हैं, तो एनएसएस के लिए हम जो भी, मतलब एनएसएस में करने का मतलब क्या है कि हम अपनी आसपास की सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं। तो एनएसएस के थ्रू जब हम अपनी सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं तो उससे क्या फायदा मिलते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है। एक तो देखो, आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करने से एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, और एक जो हम अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें भी, सोसाइटी को भी हम कुछ अपनी तरफ से दें, क्योंकि हमेशा हमारा मेन मोटो यही नहीं होता है कि हमें कोई चीज़ उनसे लेनी है। अभी आप जैसे बीटेक करने आएंगे, 4 साल के लिए आप यहाँ कॉलेज में रहेंगे,
तो ये यहाँ पर बस यही नहीं है कि रहने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ यहाँ एजुकेशन लेनी है और आप यहाँ से चले जाएंगे। एजुकेशन लेने के साथ साथ हमें भी यहाँ कुछ अपने सोसाइटी के लिए, अपने कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ देना होगा। तो वो देना किस तरह से होता है, वो इसी एनएसएस के थ्रू दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं, हम अपने कॉलेज के आसपास प्लांटेशन करके अपने कॉलेज को साफ सफाई रखें, क्योंकि देखो कॉलेज हमारा, आवर कैंपस, आवर सोसाइटी, ये सब हमारा है। कभी कभी मतलब हम इस तरह से नहीं सोच सकते ना कि हम अपनी सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो हमें कुछ उसको देना भी है। यही वो होता है, उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए ये वर्क करते हैं। तो अब उसमें वर्क करने से क्या फ़ायदा मिलते हैं स्टूडेंट के अंदर। अब ये उसके पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं या पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती हैं। ट्रेड्स का क्या मतलब होता है, ट्रेड्स माने क्या होता है, जो मतलब एक ऐसे बोले, पर्सनैलिटी तो समझ गए आप, व्यक्तित्व विशेषताएं। हाँ, ट्रेड्स मतलब विशेषताएं जो उसके अंदर, स्किल्स जो उसके गुणों को और व्यक्तित्व को निखारे, उनके विशेष पॉइंट है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, assertiveness, perseverance, tolerance, social commitment, leadership skills, communication skills, planning skill, organizing skill। तो ये सारी स्किल्स उसके अंदर डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर, कि कोई इस तरह का कोई हमें हेल्प करनी है अपने आसपास के लोगों की, तो एक प्लानिंग होगी, है ना, कि किस तरह से एक प्लान करें, उस कोई हेल्प करनी है ना। जैसे अभी कोविड के टाइम में ही अभी हम लोगों ने बस इसमें कोविड में हमने ये नहीं किया कि सारे बच्चे हमारे एक साथ निकल करके बाहर आकर के कुछ सोसाइटी के लिए, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है। हालांकि अब प्रेजेंटली अब लोग बहुत अब उन चीज़ों से काफ़ी दूर होने लग गए। जिस टाइम पर उनके अंदर काफ़ी डर था, तब तो भी वो लोग काफ़ी फॉलो कर रहे थे। अब तो बच्चे बस ये है, कॉलेज स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्यूशन वगैरह है या मार्केट है या खेलने के लिए, तो सभी जगह बहुत ज़्यादा अच्छी एक मतलब गैदरिंग कर रहे हैं, सभी लोग गैदरिंग करने लग गए हैं। तो अभी हमने ऐसा कोई नहीं किया, लेकिन जब भी, लेकिन हमने स्टार्टिंग में एनएसएस के थ्रू अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहा था। तो हमने इस तरह से किया कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, उनको अवेयरनेस दिया कि सैनिटाइज़र किस तरह से यूज़ करना है। इस तरह से उनको ये चीज़ें दी हमने बताएं। तो ये सब किस तरह से होगा, पोस्टर बनाए, पोस्टर बना करके बच्चों को बोला कि वो अपने घर पर ही हैं तो अपने घर के बाहर उस पोस्टर को लगाएं, जिससे कि आसपास के लोग उस पोस्टर को देखें तो उनके अंदर एक अवेयरनेस आए कि कोविड के थ्रू किस तरह से हमें उससे बचना है इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से होंगी, कुछ ना कुछ हमें पहले एक प्लान करना पड़ेगा, तो इससे प्लानिंग स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजिंग वे में हम कोई काम करते हैं तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स डेवलप होती है। जब हम बाहर के लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तो इंटरेक्ट करने के लिए हमें उन लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। अब कम्युनिकेशन ये कोई ज़रूरी तो नहीं होता है कि हमें इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना है, हिंदी में भी कर सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, लीडरशिप स्किल्स। अब हर एक उसमें एनएसएस में क्या रहता है कि स्पेशल डे मतलब स्पेशल कैंप रहते हैं। तो एक तो रेगुलर कैंप होते हैं, रेगुलर कैंप कॉलेज के अंदर क्या करते हैं हम, वन डे के रहते हैं। वन डे का मतलब कोई अवेयरनेस या कोई एक्टिविटी रिलेटेड कोई प्रोग्राम किया हमने। जैसे अभी हमने लास्ट ईयर, अभी मार्च में ही कोविड से पहले, मतलब होली से पहले की बात है, तब हमने अपने कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, तो उसमें हमारे एनएसएस के ही स्टूडेंट उसमें वॉलंटियर रहे, उन्होंने ही सारा ऑर्गेनाइज करके दिया, सारे बच्चों को बताया कि ये कैंप लगाया गया है ब्लड डोनेशन। तो उसमें हमने ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ हमने और उनको मेडिकली उसमें उनके मतलब उनको एक मेडिकली भी अवेयर किया गया, और उनकी एक टेस्टिंग भी कराई कुछ, कि जिससे कुछ बच्चों को वहाँ मतलब कोई स्किन डिजीज टाइप है कुछ, अगर स्किन से रिलेटेड, तो इस हमारे पास उस दिन स्किन का 2 डॉक्टर थे
और ये ब्लड डोनेशन कैंप अलग था। मतलब ब्लड डोनेशन के साथ में ही हमने दो चीज़ें की, एक तो मेडिकल टेस्टिंग करी, मेडिकल ट्रीटमेंट की टेस्टिंग कराई हमने, और साथ में ब्लड डोनेशन भी किया। तो अब उनमें क्या रहता है कि कुछ बच्चों उसमें ग्रुप में एक उनका उस ग्रुप का एक हेड बना दिया, तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक लीडरशिप स्किल भी डेवलप होती है कि अब ये तो होता नहीं कि सारे लोग एक साथ ही इंटरेक्ट करें, तो उनका ग्रुप का हेड रहेगा, वो आगे कोई चीज़ पूछेगा। और जरूरी नहीं कि हर बार वही हमें हेड रखना, हम चेंज करते रहते हैं। जो लोग बच्चे खुद से आगे आकर के बोलते रहते हैं कि हाँ हमें होना है इस ग्रुप का हेड। तो ये तो हो गया वन डे रेगुलर कैंप के बारे में। इसी तरह से स्पेशल कैंप रहते हैं हमारे, स्पेशल कैंप रहते हैं 7 डेज के। तो 7 डेज के कैंप लगाते हैं, वो डे नाइट कैंप होता है। उसमें वो हम नहीं लगा पाए अभी, इस साल नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो होली के बाद का प्लान था। और होली के बाद जैसे ही हम वहाँ कॉलेज पहुँचे थे, मैं तो कॉलेज पहुँच गया था, बच्चे नहीं पहुँच पाए थे तब तक ये पेंडेमिक और लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तो बच्चे सारे घर पे ही थे। तो उस टाइम हमने ये कैंप नहीं लगा पाया था। तो उसमें मतलब 7 डेज का जो स्पेशल कैंप रहता है उसमें डे नाइट कैंप है, जिसमें जो मैंने अभी बताया था कि हम अडॉप्ट करते हैं विलेज को, तो उसी गांव में जाकर के हमें रहना है 7 दिन के लिए। उसी में रह करके आसपास के लोगों से अवेयर करना है, उनसे इंटरेक्ट करना है, या तो किसी स्कूल में या किसी कम्युनिटी हॉल में उसमें रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द qualities that are developed in the students, these are the skills we can say, these are these are the qualities developed in the students. Okay, हाँ, दिस इज द रेगुलर एक्टिविटीज, जो भी मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि रेगुलर एक्टिविटीज क्या है ऑफ नेशनल सर्विसेज की। तो रेगुलर एक्टिविटीज में किस तरह के प्रोग्राम रहते हैं, हम लिटरेसी या एजुकेशनल रिलेटेड प्रोग्राम होगा, environment, water, land development and conservation, reconstruction, repair of roads, immunization, health camp, blood donation camp, ये हम लगा चुके हैं। अवेयरनेस कैंप ऑन ड्रग्स अब्यूज एड्स, ये भी हम लगा चुके हैं। एंटी टबैको अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर चुके हैं कॉलेज में। प्रोग्राम फॉर वुमेन, वर्क इन हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, डेस्टिट्यूट होम्स, national integration, communal harmony program, activity during emergencies such as flood, war, earthquake, tsunami, etc. Celebration of important dates, ये हम डे सेलिब्रेट करते रहते हैं, जैसे NSS डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर होता है, अब आने वाला है। एडॉप्शन ऑफ प्लेसेस, ये भी हम कर चुके हैं, गांव को अडॉप्ट करना, उसके गांव के लोगों से इंटरेक्ट करना, फिर उनके लोगों को हेल्प करना, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स, एफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक इरेडिकेशन, ये भी हम कर चुके हैं। प्लास्टिक इरेडिकेशन, इसमें क्या करते हैं हम कि अपने कॉलेज के लिए कर चुके हैं हम। ये कॉलेज में एक बार हमने साफ सफाई ट्री प्लांटेशन भी किया था, और साथ साथ वहाँ के जितने भी प्लास्टिक गार्बेज था वो हमने स्टार्ट किया, मतलब कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करके और फिर डस्टबिन में एक जगह रखा, हमने उसको डस्टबिन में फेंका। फिर नेक्स्ट ट्री प्लांटेशन, ये हम कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं इसमें लास्ट ईयर। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं इनके, जिसमें ये कुछ इस तरह के प्रोग्राम हैं जो वही जो मैं बता रहा था आपको कि वनडे के कैंप वगैरह जो रहते हैं कॉलेज में रहते। इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटी ड्रग कैंपेन मतलब जिसमें हम ये फ्लैगशिप प्रोग्राम हमको कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक रैली की तरह लगा करके रैली निकालते हैं जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। वो तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, एंटी रैगिंग प्रोग्राम, फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रैफिक अवेयरनेस एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दीज आर द फ्लैगशिप प्रोग्राम। इसमें ट्रैफिक अवेयरनेस में क्या रहता है कि एक रोड सेफ्टी का वीक होता है,
पुलिस वाले वो हमको भेजते हैं, पुलिस स्टेशन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि रोड सेफ्टी वीक मनाना है हमें। तो उसमें क्या रहता है कि कॉलेज में होता है एक बार, उसमें पुलिस स्टेशन से उनके एसआई आ जाएंगे या एसपी तक आ चुके हैं वैसे कॉलेज में, एसपी तो नहीं, इतना तो लेवल के नहीं, एसआई और इस तरह के लेवल के लोग आकर के वो हमें ट्रैफिक अवेयरनेस, जैसे बाइक पे बच्चे क्या करते हैं, बाइक पर 3-3 लोग बैठ करके और बहुत तेज चलाते हुए निकलते हैं, तो उनको यही समझाने के लिए कॉलेज आते हैं। क्योंकि देखो चालान काटना तो एक वो रहता है कि जिससे कि वो अगली बार, एक तरह का चालान क्या है, चालान एक फाइन होता है जिससे वो अगली बार वो गलती ना करे, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, तो उन्हें वही समझाने के लिए आना पड़ता है, उन्हें कॉलेज आते हैं। उसमें रोड सेफ्टी का एक वीक होता है, तो वो हम लोगों को यही कहते हैं कि इस वीक को आप बनाओ, लोगों के बारे में इसकी अवेयरनेस दो, बच्चों को भी बताओ, अपने आसपास के लोगों को बताओ कि ट्रैफिक अवेयरनेस क्या है, रोड सेफ्टी किस तरह से हमें रखनी है। ठीक है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। थीम्स फॉर द स्पेशल कैंप, जो स्पेशल कैंप मैंने बताया, स्पेशल कैंप हम 7 डेज का किसी अडॉप्टेड विलेज के अंतर्गत लगाते हैं। तो उसमें ये हमारी थीम होती है, क्या थीम रहती है, ये 5 पॉइंट हैं, इनको हमें फुलफिल करना होता है। हेल्थ, इन्वायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, स्किल एक्वाइजेशन, वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं, इनको फुलफिल करते हुए हम अपने कैंप को लगाते हैं, और उस कैंप के थ्रू अपने आसपास अपने विलेज में, जो एडॉप्टेड विलेज है उसके आसपास के लोगों के जो हम हेल्प करेंगे, इन 5 पॉइंट को फुलफिल करते हुए करते हैं। हेल्थ, इन्वायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, स्किल एक्वाइजेशन, वैल्यू एजुकेशन। क्लियर हुआ है यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ये हमारे जो हमने लास्ट ईयर कुछ प्रोग्राम किए हैं, ये उनके पिक्स हैं। तो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन कहें, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएसएस हो गया, उसका एनएसएस का लोगो क्या है, एनएसएस का स्लोगन, मोटो क्या है, नॉट मी बट यू, उसका मीनिंग क्या है, और एनएसएस का सिंबल जो चक्र है उसके सिंबल का मीनिंग क्या है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ ना? यस सर। हाँ? यस सर। यस सर, यस क्लियर सर। हो गया। यस सर। तो ये हमारे कुछ पिक्स हैं जो हमने अभी लास्ट ईयर से जो हमने प्रोग्राम किए हैं। इसमें देखो पहले वाला पिक जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये मैं ही हूँ, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर नितिन गुप्ता। ठीक है, ये बच्चे सारे गैदर किए गए हैं एक जगह, उन लोगों को एनएसएस के बारे में बताना हो रहा है इस टाइम पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही कॉलेज में आया था, तो बच्चों को बताना हो रहा है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह से ये लास्ट ईयर बताया गया था 24 सितंबर को। ये यहाँ पर हम ये देखो, ये झाड़ू वगैरह भी आप देख रहे हैं, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सभी लोग कलेक्ट हुए, गैदर हुए हैं। फिर उसके बाद हमने ट्री प्लांटेशन किया है। ट्री प्लांटेशन के साथ साथ हमने कॉलेज में प्लास्टिक रेडिकेशन किया है। और जो भी वहाँ पे इतना, वैसे हमारे आप लोग वैसे कॉलेज में भी एडमिशन के लिए भी आए होंगे, तो आपने देखा होगा आसपास इतनी ज़्यादा गंदगी है नहीं, मतलब जो प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक क्या रहता है कि वो बहुत बहुत दिनों तक पड़ा ही रहेगा एक ही जगह, तो इसीलिए हमने प्लास्टिक, मतलब जो भी हमें गंदगी वाली चीज़ें दिखी वो हमने एक जगह कलेक्ट करी। ये डस्टबिन, बड़े बड़े डस्टबिन है, इनमें रखते हुए। ठीक है, ये देखो, इसमें वही प्लास्टिक दिख रहा है, प्लास्टिक कहीं या वो रैपर जिसमें चिप्स और टॉफी टाइप के, ये सब कलेक्ट करते हुए जा रहे हैं कॉलेज में पूरे। ये देखो, मैं बता रहा ना 24 सितंबर, इसमें डेट भी आ रही है। ये ट्री प्लांटेशन किया है ये हमने। ये एंटी टबैको अवेयरनेस प्रोग्राम किया था हमने, ये लास्ट ईयर किया था अक्टूबर के मंथ में, 26 अक्टूबर, या डेट नहीं ध्यान, लेकिन हाँ अक्टूबर के आसपास किया था, अक्टूबर में ही किया था। तो इसमें एंटी टबैको, ये उसमें जिला अस्पताल, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए थे,
ये डॉक्टर है, ये हैं, ये 3 लोग आए थे। इन 3 लोगों ने ये बोला था कि हमें यहाँ के यूथ, मतलब कॉलेज में है ही क्या हमारे पास यूथ हैं, यंग हैं, तो इन यूथ को ये बताना है कि ये एंटी टबैको से दूर रहना, मतलब टबैको से दूर रहना है। इसके लिए उन्होंने एंटी टबैको की ये पहले तो उन्होंने प्लेज ले रहे हैं, हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, प्लेज ले रहे हैं। और बच्चों ने उस दिन एक डिबेट कंपटीशन भी किया था, इन्होंने डिबेट कंपटीशन कराया था। तो एंटी टबैको से रिलेटेड बच्चों ने अपने अपने व्यूज प्रेजेंट किए थे। उसके बाद उन्होंने प्राइज भी दिए। ये देखो, ये के पास ये बोतल दिख रही है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 2 स्टूडेंट दिख रहे हैं, एक थर्ड स्टूडेंट और था, वो चला गया था उस टाइम तक। तो ये को ये वाली बोतल, थर्मो स्टील की बोतल इन्होंने ही गिफ्ट में दी थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। बाकी की तो काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये हमारी पूरी टीम हो गई जिसमें हम लोग रहे थे, स्टाफ हैं, स्टूडेंट हैं। ये क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हम आसपास के गांव को अडॉप्ट करते हैं, फिर वहाँ जा कर के हमारे एनएसएस के वॉलंटियर वहाँ जा कर के आसपास के लोगों को उन्होंने इसके बारे में बताया कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी है। उनसे प्लास्टिक के बैग भी हमने कलेक्ट कर लिए थे और उनको हमने उसके बदले में ये क्लॉथ बैग दिए थे। ये ठीक है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन डे ये बनाया जाता है 26 नवंबर। ये हमने 26 नवंबर को बनाया जाता है। आप देखेंगे वैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे, इनमें क्या डिफरेंस रहता है? अब कोई ज्वाइन कर रहा है इतनी लेट। बता सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन डे या रिपब्लिक डे, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे तो हम मनाते हैं 26 नवंबर को, और रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? सर क्योंकि रिपब्लिक डे के दिन वो एनफोर्स हुआ था कंट्री में। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? सर 26 जनवरी। अरे उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, किस रिपब्लिक दिन डे आया? के दिन। और सर 26 नवंबर को कंप्लीशन हुआ था और 26 जनवरी से वो एनफोर्स हो गया था कंट्री में, 26 जनवरी 1950 से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब उसी से 2 महीने पहले 26 नवंबर तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो ये अभी 2 साल से ही मनाना स्टार्ट किया गया है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाना होता है। तो इसमें और कुछ पॉइंट उसके मतलब 26 नवंबर से ही भी लागू कर दिए गए थे, और 26 जनवरी से ये इन्फोर्स हो गया था पूरा सारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए उस टाइम पे क्या था, हिस्ट्री मतलब एक इतिहास में आप देखेंगे, हिस्ट्री में 26 जनवरी जो डेट थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट थी। तो पहले ही ये इस तरह से डेट दे दी गई थी कि हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस बनाएंगे। मतलब काफ़ी पहले 1940s जैसे 1946 में तो हमें फ्रीडम मिली गई थी। फ्रीडम से पहले की बात बता रहा हूँ, 1940 के आसपास की बात होगी। या तो कि 26 जनवरी जो थी वो एक इम्पोर्टेंट डेट है। इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर, मतलब इस तरह से डिक्लेयर कर दिया था कि हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए वो उस डेट की एक महत्वता थी। इस वजह से 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था अपने कंट्री में। लेकिन ये 26 नवंबर तक बन गया था। उस दिन इसका प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो उस दिन संसद भवन के अंदर पढ़ा भी गया था। तो 26 नवंबर को हमने संविधान
एक्सेप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, और उस दिन हमने उसका प्रीएम्बल भी रीड किया था। तो इसीलिए उस दिन को तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। और जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूरी कंट्री में इन्फोर्स किया गया, पूरी तरह से लागू किया गया, वो डेट थी 26 जनवरी। तो उस दिन को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो ये अभी इस समय हम क्या कर रहे हैं, ये प्रीएम्बल रीड कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डे हमें सेलिब्रेट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रीएम्बल को रीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो टीम थी उनके साथ की फोटो हुई। ये ब्लड डोनेशन कैंप मार्च के मंथ में ही लगाया था ये हमने। इसमें बच्चे भी हैं, ये सभी लोग हैं इसमें। ये हमारा एक डॉक्टर की टीम भी थी हमारे साथ। ये 2 डॉक्टर हैं, ये इनके फार्मेसी स्टाफ है। तो ये लोग हमारे कॉलेज में आए थे। इन्होंने बच्चों के साथ, बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए, मतलब एक टेस्टिंग की थी कि स्किन से रिलेटेड, कि कोई स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है। तो ये हो गया। तो ये इसके बारे में हो गया आप लोगों को, जो हमने अभी तक एक्टिविटीज की हैं एनएसएस के थ्रू कॉलेज के अंदर। जैसे ट्री प्लांटेशन है, साफ सफाई है, अडॉप्टेड विलेज में जाके हमने क्लॉथ का डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, एंटी टबैको कैंपेन किया था हमने, एंटी टबैको अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये सब उसके से रिलेटेड पिक्स हो गई, और एनएसएस के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया। इससे पता चल सकता है कि आप लोगों को एनएसएस है क्या, क्या काम करता है सोसाइटी के लिए, आसपास की कम्युनिटी के लिए। कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? यस सर। सर ये एनएसएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? एनएसएस में रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आप जब कॉलेज आओगे तब करा देंगे। अभी तो क्या है, अभी फॉर्म तो आ गए हैं हमारे पास। अब या तो वो ये है कि हम फॉर्म मेल कर दें, मेल के थ्रू आप सबमिट करा सकते हैं। ओके सर। सर कोई बेनिफिट ये एनएसएस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट? यस बिल्कुल है। ये 2 साल का मतलब इसमें हम 2 साल तक एक्टिव रहते हैं। तो इसमें हमें 3 लेवल के इसमें वो सर्टिफिकेट है। एक तो हो गया, एक जो कॉलेज में आप सर्टिफिकेट के कुछ वो रहते हैं, लेवल रहते हैं। ए ग्रेड सर्टिफिकेट, बी ग्रेड सर्टिफिकेट एनएसएस का। तो ए ग्रेड सर्टिफिकेट ये रहता है कि आपने एक साल में इसमें 120 आवर के लिए एक्टिव रहना है। 120 आवर को आपको एक्टिविटी दिखानी है। आपको ये कोई वैसे तो नहीं फिक्स्ड है वो कि आपको फिक्स एक्टिविटी दिखानी ही है। यह है कि वो तो जो प्रोग्राम ऑफिसर रहता है, जैसे है ना, जो प्रोग्राम ऑफिसर होगा वो उसका सर्टिफिकेट इशू कर देता है। दूसरा इसमें सर्टिफिकेट जो दूसरे लेवल का है, जैसे बी सर्टिफिकेट कहते हैं, इसमें वो बी सर्टिफिकेट एनएसएस का एग्जाम के थ्रू मिलता है। उसका पेपर कराते हैं। तो पेपर में यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। ये मैंने जो अभी आप लोगों को इसके बारे में जो बताया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे थे। जैसे एनएसएस डे कौन से दिन मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन से दिन मनाते हैं, ये डे से रिलेटेड हो गए कि एनएसएस के लोगों में कितनी बार्स हैं, कि कलर कौन से हैं, उनकी मीनिंग क्या है। मतलब इस तरह की जो नॉलेज अभी मैंने जो आपको लोगों को बताया, वो सारे क्वेश्चन रहते हैं। वो भी मुझे अभी हमारे कॉलेज के बच्चों के अभी वो हुआ भी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं पता है मुझे कि कितने क्वेश्चन आते हैं। बताया तो गया था एक बार, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कितने उन्हें फिर सही करके क्वालिफाई करना होता है। तब वो एनएसएस का वो वाला सर्टिफिकेट जो होता है, बी सर्टिफिकेट सर कहते हैं, वो एनएसएस के सेल के अंदर, मतलब अंदर आते हैं। जिसका यूनिवर्सिटी का सेल होता है उसके अंदर, वहाँ से ही वो रिलीज किया जाता है। आपने अब ये पूछा कि इसका बेनिफिट क्या है, तो इनके सर्टिफिकेट में आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं,
तो उसमें नहीं रहता है कि एनएसएस सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट है, एनएसएस या एनसीसी करके नहीं लिखा रहता है। तो यस सर। उससे हाँ, तो उससे क्या होता है कि इंटरव्यू में 5 पॉइंट मतलब 5 नंबर बढ़ जाते हैं और 10 नंबर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से रहता है, ओके ए सर। सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट। तो इनसे ये फायदा रहता है। बाकी क्या, तो देखो इस तरह से आपको दिखाई बताया कि क्या क्या बेनिफिट हैं, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। आप एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, अपने आसपास की सोसाइटी को भी डेवलप करना एक वो रहता है हमारा मेन मोटो रखना चाहिए। हमें यही नहीं कि सोसाइटी से कुछ लेना ही है, उसको भी कुछ देना है। आप टीरी आ रहे हैं, टीरी आकर के आप 4 साल पढ़ के जा रहे हैं, तो टीरी को भी कुछ दे के जाए। कुछ देने का मतलब है कि वहाँ उसको सोशली हम क्या कर सकते हैं, उस तरह से रिलेटेड है। तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा लगे कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के ही सारे काम यही करने हैं। ये हमें काम जो करने हैं वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ करने होते हैं। अब आप खुद मुझे भी सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो वो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने हैं। तो वही है कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ हमें एक सोशली भी हमें एक्टिव रहना चाहिए। कहने का मतलब इससे बस यही फायदा होता है। सर जी सर जो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कैंप्स वगैरह की, तो सर ये कॉलेज के टाइम पे ही होती हैं जब सर स्टडी चल रही होती है, या फिर अलग टाइम पे? हाँ, वन डे कैंप जो रहता है उसे कैंप का ही नाम दे दिया है हमने। जो रेगुलर कैंप बोलते हैं वन डे का, जिस तरह से हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया या फिर एंटी अवेयरनेस प्रोग्राम लगाया। तो इसमें टीम रहती है पूरी हमारे पास। टीम का कहने का मतलब है हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में 50 वॉलंटियर्स, 50 वॉलंटियर हैं हमारे पास। हाफ यूनिट कहते हैं उसे। हाफ यूनिट के अंदर 50 वॉलंटियर आते हैं। अब हाफ यूनिट और हमको बोलने का यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है। ये एनएसएस की जो सेल है ये हमारे उसमें श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो वहाँ से हमको इसका ऑर्डर मिला है कि आप 50 स्टूडेंट और इसमें ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से अब हमारे पास फुल यूनिट हो जाएगी। तो अब इतने सारे बच्चे रहते हैं, तो अब ये तो है नहीं कि हमें सारी लोग वहीं पे बैठा के रखने हैं। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप था, तुमने कितना आधा आध घंटे के लिए, एक वन वन आवर के लिए हमने 10-10 बच्चे वहाँ पे रखे। पूरे दिन भर में वो कैंप भी कंप्लीट हो गया और बच्चे भी अपने एक्टिव रहे, बच्चों ने भी अपना खुश रहे, उनकी क्लासेस भी चली। उनकी क्लासेस हमने डिस्टर्ब नहीं की। जिसकी जिस टाइम पे क्लास है वो क्लास करे, अगर उस टाइम पे अगर वो खाली है उस टाइम पे वो आ जाए। 10-10 बच्चे वहाँ रहें, एक एक आवर के लिए रहना है, बाकी चले जाना है। इससे क्या होता है, एक टीम वर्क भी हो जाता है। जो अभी बता भी रहा था कि क्या क्या स्किल्स होती हैं, इससे लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है, टीम वर्क आता है, आप टीम के साथ काम करना भी सीख जाते हैं। जरूरी नहीं होता है कि अपने ही क्लास के बच्चों के साथ हमेशा ही लगे रहना है, दूसरी क्लास के बच्चों के साथ भी रह के काम करना आना चाहिए हमें ना। और सीनियर्स के साथ भी ये रहता है। और बताइए और कुछ। तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट आवर जो था, नेक्स्ट आवर में भी था ना 12 से 1 में भी ये एनएसएस से रिलेटेड कुछ तो था। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर Poster and slogans. पोस्टर एंड, Slogan. अच्छा स्लोगन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी करना चाहेंगे आप एनएसएस के यस लिए कुछ सर। अभी? यस यस सर। सर। तो किस टॉपिक पे पोस्टर बनाना चाहेंगे अगर अभी आपको पोस्टर दिया जाए? सर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट। और स्लोगन के लिए फिर? तो सभी लोगों को पोस्टर ही दिया जाए फिर कि स्लोगन भी देना है? नहीं सर, एक दे दो सर, टाइम लगता है बनाने में। सर स्लोगन ठीक रहेगा सर, पोस्टर थोड़ी हार्ड हो जाता Yes, है। sir. Slogan ही सही रहेगा.
अरे स्लोगन बहुत फिर छोटा हो जाता है, पोस्टर वगैरह ये है ना, जो पोस्टर उसमें कलर्स हैं, उसमें पूरा सर कलर ही नहीं है प्रेजेंटेशन सर। आता है। क्या बात कर दी, कलर नहीं है? आप लोग इस सर तरह से अभी कैसे नहीं कह है सर, सकते और हैं? अभी तो मार्केट भी नहीं जा सकते सर। क्यों नहीं जाते हो? सब घूमते हैं अब तो। सर हम गांव में है ना सर, तो फिर गांव से मार्केट कैसे जाएंगे सर? देखो, जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको तो मैं नहीं फोर्स कर सकता, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब सर मतलब पार्टिसिपेट कर, स्लोगन दे दो सर, स्लोगन लिख देंगे। ऐसा करते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, मैं दोनों ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, पार्टिसिपेट सभी लोगों को करना है, और अपनी सुविधा के अनुसार, आप जैसे कह रहे हो आप गांव में हो, या आप कहीं सुदूर, मतलब कहीं दूर क्षेत्र में हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग जिसको जैसा सही लगे, कि आप स्लोगन बना सकते हो, स्लोगन लिख सकते हो तो स्लोगन लिखिए, लेकिन लिखना फिर वो उस तरह से है, लिखना पोस्टर पर ही है, हाँ मतलब सर वैसे लिख देंगे ड्राइंग, सर। ड्राइंग चार्ट होता है ना, यस सर। ड्राइंग शीट, शीट पेपर जो होता है, उसी पे ही लिख के देना है। A4 नहीं होता है वो, A4 से बड़ी शीट रहती है। हाँ, ड्राइंग शीट होती है, उसे ड्राइंग शीट बोलते हैं। अभी आप एक्चुअली एक तो अभी उसमें नहीं आए ना, अभी बीटेक के लिए कॉलेज नहीं आए ना, नहीं तो पता चल जाता आपको ड्राइंग शीट किसे बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो ड्राइंग में क्या होता है, एक ड्राइंग सीट होती है, उसी पे ही पूरे चार्ट पेपर पर हम ड्रॉ करते हैं। अल्फ़ाबेट लिखना है तो किस तरह के अल्फ़ाबेट, कितनी लेंथ रखनी है, हाइट रखनी है, विड्थ रखनी है, किसी स्ट्रक्चर का टॉप व्यू किस तरह से दिखेगा, साइड व्यू कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, वो सब उसको बनाना होता है। वो ड्राइंग शीट बोलते हैं, उसे चार्ट पेपर बोलते हैं। आपने, हाँ, अभी 12th में जैसे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो वो बनाते थे आप, लैब के लिए, लैब के लिए वो लैब के लिए नहीं बना के देते हैं पेपर पे? हाँ, तो वो जो जितना बड़ा वो पेपर, वो शीट होती है ना, उसी को बोलते हैं ड्राइंग शीट। चार्ट यस सर पेपर समझ यूज किया गए। ना, बड़ा वाला जो रहता है, मोटा सा रहता है, हल्का सा थिक रहता है ना, यस सर। समझ गए ना? यस सर तो समझ गए हम। हाँ, स्लोगन भी लिखें तो उस पे लिखें, और अगर पोस्टर डिजाइन करें तो पोस्टर भी उसी पे करें। तो पोस्टर की थीम हमारी और स्लोगन की थीम वुमेन एम्पावरमेंट पे ही रहेगी। कब तक सबमिट कर सकते हैं? ठीक है।